Hello students, this video is based on today's doubt class. In this video, I will try to clear all your doubts which you have. One student asked me what is rational number. बच्चे, a number which can be represented in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equals to 0 is known as rational number. Example is 1 by 3, 1 by 2, etc. और कहने का मतलब ये है कि वो सारे नंबर जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q आपके इंटीजर्स होने चाहिए और q आपका कभी भी 0 ना हो, तो ऐसे नंबर आपके क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर. जैसे 1 by 3, 7 by 8, 9 by 5, etc. etc. All these are known as our rational number. One student asked me about this question to solve it using distributive property. Before solving this question, बच्चे, I want to tell you what is distributive property. Distributive property of multiplication is this. It is that if a is multiplied with b plus c, then how can we write it? We can write a is multiplied with b, then we will do addition and a is multiplied with c. कहने का मतलब ये है कि जब a की मल्टीप्लिकेशन करनी है आपको b प्लस c के सम के साथ, तो आप इसको बजाय पहले सम करने के आप क्या कर सकते हैं? इसको सेपरेटली आप मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर सकते हैं. देखिए बच्चे, यू कैन डू इट a मल्टीप्लाई विद b, देन प्लस साइन a मल्टीप्लाई विद c. According to this question, this -11 is your a, 23 is your b, and c is your -10. You have to write it in the form of a, b, c and then solve it like this. See students, this is a, b, c. Here what you are doing, a multiply with b, then plus a multiply with c. A multiply with b plus a multiply with c. Here -11 is multiplied with the 23. One number has minus sign, another has plus sign. We know during multiplication, if we have different sign, then we get the sign of minus. Multiplication के टाइम अगर एक साइन आपका प्लस है, दूसरा माइनस है, तो आपको किसका साइन मिलता है? माइनस का. सो बच्चे, 11 मल्टीप्लाई विद 23 gives you -253. Then plus -11 is multiplied with -10. 2 times minus is multiplied. Then minus during multiplication give us plus. And this 11 into 10 gives you 110. Now बच्चे, open these brackets. This becomes -253 and plus multiply with plus gives you plus and 110 you will get. And when you solve this you will get -143 answer. बच्चे, it is based on the multiplication of signs. We know minus plus minus, plus minus minus. During multiplication, different sign give us minus and same sign give us plus. Okay. Now second question. If weight of 12 books is 15 whole 2 by 3 kg, then find the weight of 1 book. बच्चे, 12 बुक्स का आपको वेट गिवन है जो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है, आपको 1 बुक का निकालना है. तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? ध्यान से देखिए. वेट ऑफ 12 बुक्स इज 15 होल 2 by 3 kg. बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. See, 3 into 15 gives you 45. 45 plus 2 gives you 47 by 3 kg. बच्चे, it is the weight of 12 books. For calculating the weight of 1 book, what you have to do? You have to divide it with the 12. अगर आपके पास 10 बुक है, 10 बुक का वेट आपका 10 किलो है, तो एक बुक का आपका वेट कितना होगा? आप 10 से डिवाइड करके बताओगे ना. इट इज 1 kg. सेम यू आर डूइंग हेयर 12 बुक्स आर गिवन एंड द वेट ऑफ द बुक्स आर गिवन इन द मिक्स्ड फ्रैक्शन, दैट इज 15 kg, 15 whole 2 by 3 kg, and I convert it into our improper fraction, that is 47 by 3 kg. Weight of 1 book we will get after dividing it with the 12. When we want to convert this sign into multiplication, this last number, that is 12, will be written as 1 by 12. This division sign will convert into multiplication, and this 12 we have to take reciprocal of 12 like this. Here multiply 47 into 1 gives you 47, 3 into 12 gives you 36 kg. This is in mixed. This is in improper fraction. We want to convert it into mixed. Divide 47 with 36. You will get 1 whole and 1 by 36 kg. Okay students, hope it is clear to you all. Now after this, one student asked me, ma'am, what is terminating and non-terminating decimals? बच्चे,
First of all, I want to tell you according to this, then I will explain what is written here. The division process comes to an end after some step in the cases of rational number such as 1/2. Such type of decimal are called terminating decimal. कहने का मतलब क्या है, जब अगर आपके पास कोई रेशनल नंबर गिवन है, जैसे 1/2 यहाँ पर गिवन है, अगर आप यहाँ पर डिवाइड करते हो, इसका मतलब क्या है कि यू आर डिवाइडिंग दिस 1/2, कि आप यहाँ पे 1 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 को. जब आप 1 को 2 से डिवाइड करोगे और कुछ टाइम बाद आपको क्या मिल जाता है, ये जो प्रोसेस है एक खत्म हो जाता है और आपको एक डेसिमल नंबर मिल जाता है. वो डेसिमल नंबर आपका क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. सी बच्चे, 1/2 व्हेन यू डिवाइड, तो व्हाट यू विल गेट 0.5. इसका मतलब ये है कि आपकी डिवीजन एक प्रोसेस के बाद, कुछ स्टेप्स के बाद खत्म हो गई है, तो ये आपका क्या कर गया, नंबर टर्मिनेट कर गया. इसका मतलब आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल. नाउ सी, इफ डिवीजन नेवर गेट्स कंप्लीटेड एंड आइदर ए डिजिट और ए ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट्स इटसेल्फ अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. ये क्या कहता है बच्चे कि अगर आपका जो डिवीजन प्रोसेस है वो कभी खत्म ना हो, या तो कोई एक डिजिट या फिर कुछ डिजिट्स का ग्रुप बार बार रिपीट होता हो, तो इस टाइप के जो आपको डेसिमल्स मिलते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. यू कैन सी हियर 1/3. व्हेन यू विल डिवाइड 1/3, जब आप 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका नंबर कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा. आपको ये जो प्रोसेस है कभी भी खत्म नहीं होगा. आपको हमेशा क्या मिलेगा, 0.333 सो ऑन. आपका जो 1 है वो बार बार रिपीट करता रहेगा और आपके पास ये जो प्रोसेस है डिवीजन का, ये कभी भी खत्म नहीं होगा. यू कैन सी इट हियर. इफ यू विल डिवाइड दिस 1/3, what you will get, it is not going to, 1 is not divided by 3, so you have to put 0 here, point, and you can take point here and put 0. See, it will become 10. Now 3 3s are 9, 3 3s are 9, and it gives you 1. Again here you will take one more 0 and it will begin again 10, and again 3 3s are 10, 9. So you will get 1 again and again, and this process will never end, and you will get 1/3 is equals to 0.3333, और you can say 0.3 बार. इस टाइप के डेसिमल्स आपके क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, और ये वाला डेसिमल आपका क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग. बच्चे, सुनीता वॉक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुनीता वॉक्स हाफ किलोमीटर ईच डे, रमेश वॉक्स 1/3 किलोमीटर ईच डे. हाउ मेनी मोर किलोमीटर विल सुनीता वॉक्स देन रमेश इन 18 डेज. ये क्या कहता है कि सुनीता डेली हाफ किलोमीटर वॉक करती है, जबकि रमेश डेली 1/3 किलोमीटर वॉक करता है. 18 दिन बाद सुनीता ने कितना ज़्यादा वॉक किया रमेश से. तो बच्चे लिखिए, सुनीता वॉक्स करती है एक दिन के अंदर कितना, 1/2 किलोमीटर. ओके, सुनीता 18 डेज में कितना करेगी, एक दिन में हाफ है तो 18 डेज में कैसे पता लगेगा, मल्टीप्लीकेशन से. तो हाफ इंटू 18, वट यू गेट, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो 9 किलोमीटर. 18 डेज के अंदर सुनीता ने कितना वॉक किया, 9 किलोमीटर. रमेश वॉक करते हैं एक दिन के अंदर 1/3 किलोमीटर. रमेश वॉक करते हैं 18 डेज में, मल्टीप्लीकेशन आप करोगे 6 किलोमीटर. इसका मतलब आपकी जो सुनीता है वो रमेश से 3 किलोमीटर, 9 - 6 यानी कि 3 किलोमीटर ज़्यादा वॉक करती है 18 दिन में. इसके बाद बच्चे, एक बच्चे ने मुझे पिक्चर भेजी इस नंबर लाइन की और पूछता है, मैडम आइडेंटिफाई द इंटीजर सोन बाय द डॉट. बच्चे, सी हियर यू कैन क्लियरली सी डॉट इज हियर, दिस इंटीजर इज योर 6, or you can say +6. This integer is your 0 and this integer is your -3 and this is your -9. Here is nothing to do, just see the number which is written with the dot and that is your required integer. Understand? Now one more question, by what number should we multiply this number to get 17. अगर ऐसा क्या नंबर मैं लूँ कि मैं 9 होल 2/3 से मल्टीप्लाई करूँ और मुझे वो 17 दे दे. बच्चे मान लीजिए वो नंबर आपका क्या है, x है. जो नंबर आपको मल्टीप्लाई करना है इस नंबर के साथ ताकि आपको 17 मिल जाए, वो नंबर आपने क्या मान लिया, वो नंबर क्या है आपका, x है. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस नंबर को x के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना मिलता है, 17. इस नंबर को मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब मैंने कन्वर्ट किया अपना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, 3 9 जा 27, 27 + 2 29/3 इंटू एक्स गिव्स यू 17. तो x आपका किसके इक्वल आ गया, 17 इंटू 3/29. देखो बच्चे यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन में है, ये 3 यहाँ पे डिवीजन में है तो ये कहाँ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में, और 29 मल्टीप्लीकेशन में तो कहाँ जाएगा, डिवीजन में. आपको पता है जब आप साइड चेंज करते हो तो आपका नंबर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में और डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाती है. यहाँ 3 बाय में है तो ये अप साइड चला जाएगा, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर. व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 3 इंटू 17 यू विल गेट 51/29 एंड इट इज गिवन इन इम्प्रॉपर. इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, 51 को 29 से डिवाइड
डिवाइड करना है। जब 51 को आप 29 से डिवाइड करोगे तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 होल 22/29। नाउ स्टूडेंट्स बच्चे देर इज वन मोर क्वेश्चन, 23 is divided by something, this dash means that you have to fill a number here so that you will get the answer 3। बच्चे यहाँ गिवन है 23 डिवाइडेड बाय किसी नंबर से प्लस ब्रैकेट के अंदर -2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 3। तो बच्चे मैं मान लेती हूँ कि वो नंबर मेरा जो इस डैश के अंदर जो फिलअप है इसके अंदर x है, जो कि मुझे यहाँ पे x लिखने के बाद मुझे आंसर क्या देता है 3। बच्चे दिस -2, जब ये -2 आपका राइट हैंड साइड जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +2 में। इसका मतलब क्या बन जाएगा, 23 इज डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 3 + 2, दैट इज 23 इज डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 5। सी बच्चे जब हम इस डिवीजन को कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो जो आपका लास्ट वाला नंबर है उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। सी हेयर व्हाट इज द नंबर 23। अब ये डिवीजन वाला सिंबल मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करती हूँ तो x क्या बन जाएगा, 1/x इज इक्वल्स टू 5। नाउ व्हेन आई विल मल्टीप्लाई व्हाट विल आई गेट, 23/x। बच्चे मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना है, इस x को मैं इस साइड भेज देती हूँ तो क्या बन गया 5x इज इक्वल्स टू 23। दिस 5 इज इन द मल्टीप्लिकेशन, व्हेन इट विल गो दिस साइड इट विल गो इन डिवीजन। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 23/5। आप यहाँ पर पुट करके देख सकते हैं 23/5 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। One student give me this question. Question is that multiply 1/2 of 2/3 with the help of diagram। एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन भेजा जिसमें वो क्या कहता है कि 1/2 को मल्टीप्लाई करना है 2/3 से विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आप इसको अगर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हो आपको क्या मिलता है, 1 × 2 दैट इज 2, 2 × 3 6, 2/6। तो बच्चे इसी चीज़ को हमें डायग्राम से बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी दिस नंबर 2/3। तो फर्स्ट यू हैव टू डू व्हाट, you have to make this diagram. Here see 1 2 3, you have 3 parts, from 3 2 are you have to shade, you have shaded 2 part। बच्चे 2/3 पहले आपको क्या करना है, 3 बॉक्स आप बनाएंगे। 3 बॉक्स में से देखो 3 में से 2 बॉक्स को आप क्या कर दोगे, ऐसे यहाँ पे इसको फिल कर दोगे। ठीक है बच्चे, आप इसको शेड कर दोगे। और दिस ABCD पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, 2/3, मतलब कि 3 पार्ट में से 2 पार्ट आपके शेडेड हैं, ये आपका डिनोट करता है। अब बच्चे देखिए, अब इसमें क्या कहता है 1/2 ऑफ 2/3। तो बच्चे सी 1/2 ऑफ 2/3, 2/3 कौन सा पार्ट है, ABCD। ये पार्ट कितना है आपका 2/3। इसका हाफ करने के लिए आपने क्या किया, इसको आधा कर दिया। यहाँ पे आपने एक हॉरिजेंटल लाइन लगाई, एक पार्ट ये दूसरा पार्ट ये, हाफ हो गया ना बच्चे। तो हाफ का मतलब यानी कि 1/2, 1 पार्ट 2 पार्ट। तो 1/2 का मतलब क्या कि आपका एक पार्ट, 2 में से एक पार्ट आपको शेड करना, आपने एक पार्ट शेड कर दिया। ठीक है बच्चे, हेयर ABEF ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपका 1/2 ऑफ 2/3। फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट डबल शेडेड पार्ट सोज 2/6। बच्चे देखिए ये डबल शेडेड का मतलब क्या है कि एक बार शेड यहाँ आपने किया, दूसरी बार आपने ये किया। तो ABEF आपका ये क्या है, डबल शेडेड पार्ट है। और कितने बॉक्सेस आ रहे हैं इसके अंदर, 1 2, टोटल बॉक्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब कि जो डबल शेडेड पार्ट है क्या दिखाता है, 2/6 दिखाता है। जब आप इसकी एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करोगे तब भी आपको 2/6 मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको डायग्राम से बनाने हैं। पहले आपको क्या करना है, इस वाले नंबर को डिवाइड करना है, देन आपको ये वाला काम करना है। होप दिस all your doubts are clear in this video. Thank you students.